Hello everyone, welcome to LRDI Prep. My name is Samir Sardana. I'm a Plus educator on Unacademy and I'm teaching students live on Unacademy Plus. If you're planning for Unacademy Plus subscription guys, LRDI Samir is my referral code that you can use to get off on the Plus purchase price for your CAT exam preparation. In this session today, I will be discussing a CAT 2006 original mathematics puzzle which is based on the concept of Erdos number. एरोडोस नंबर क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है, उसका नॉलेज आपको पहले से नहीं रिक्वायर्ड है, वो इंफॉर्मेशन आपको सेट के अंदर ही दिया हुआ है. सो एरोडोस नंबर किसको बोलते हैं, वो डेफिनेशन आपको सेट में इंस्ट्रक्शंस को रीड करके समझना है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. This particular puzzle is based on the concept of average and based on the concept of the definition of Erdos number. So basically you're supposed to understand this information properly to solve the set. What does it say? Let's read it. Direction for questions. Mathematicians are assigned a number which is called as Erdos number, named after the famous mathematician Paul Erdos. So ये पूरे फर्स्ट पैराग्राफ में आपको एक कहानी बताई है जो आपको समझनी है, right? Every mathematician has been assigned a number and that number is called as an Erdos number. And why this Erdos number? It has been named after the famous mathematician Paul Erdos. Now this person Paul Erdos is a mathematician. He himself has an Erdos number of 0. Paul Erdos himself has an Erdos number of 0. Any mathematician who has written a research paper with Erdos, that means with the Paul Erdos, has an Erdos number of 1. So Paul Erdos का खुद का Erdos number is 0. अगर कोई मैथमेटिशियन एक रिसर्च पेपर पॉल एरोडोस के साथ कंबाइन में कोऑथरशिप करेगा तो उसका एरोडोस नंबर 0 + 1 हो जाएगा, दैट इज 0 + 1 = 1. फॉर अदर मैथमेटिशियन द कैलकुलेशन ऑफ हिज और हर एरोडोस नंबर इज इलस्ट्रेटेड बिलो. सो ये कहानी आपको समझनी है, क्या ये इलस्ट्रेशन है, लेट्स अंडरस्टैंड इट. Suppose that a mathematician X has co-authored a paper with several other mathematicians, and from among them mathematician Y has the smallest Erdos number. Let the Erdos number of Y be Y. Then X has an Erdos number of Y + 1. The meaning of this statement is, let's say I as a mathematician write down a research paper with some other mathematician. Let's say my Erdos number is 10 and the person with whom I'm doing a co-authorship or a research paper, who the Erdos number of that particular person is, let's say 11 or let's say 15. So my Erdos number is 10 and the person with whom I'm doing a co-authorship, that person has an Erdos number of 15. So after doing the co-authorship of the research paper, the Erdos number of that person will be 10 + 1, that is equal to 11. That means less Erdos number means a better mathematician, right? जिस person का Erdos number कम होगा वो better mathematician में count होगा. And 2 or 3 different person जो आपस में co-authorship कर रहे हैं, जिस person का Erdos number सबसे छोटा होगा उसमें 1 ऐड करके जो Erdos number बनेगा वो बाकी सभी mathematician को assign हो जाएगा. That is the meaning of this statement, right? Hence, any mathematician with no co-authorship, अगर किसी person ने आज तक कभी co-authorship किया ही नहीं तो उस person का Erdos जो number होगा वो infinite होगा, right? Infinity होगा, right? In a 7-day long mini conference organized in a memory of Paul Erdos, a close group of 8 mathematicians, call them A, B, C, D, E, F, G. So these are the 8 mathematicians, guys. Discuss some research problems. At the beginning of the conference, A was the only participant who had an infinite Erdos number. Infinite Erdos number means A is the least experienced mathematician, or you can say A have not done any research paper with any other person, and that's why the Erdos number of A is infinite, right? Erdos number, nobody had an Erdos number less than that of F. So among these person, F is a person who is having the lowest Erdos number. And what is its lowest value? We do not know that. इसका Erdos number क्या आपने को नहीं पता. Okay. So basic कहानी है, कुछ नहीं है, बहुत easy set है. अगर आप ये पूरे कहानी समझो तो आप 5-10 minutes में पूरा set solve कर सकते हो. On the 3rd day of the conference, F co-authored a paper jointly with A and C. F ने
थर्ड डे, कॉन्फ्रेंस के थर्ड डे पे ए और सी के साथ अपना एक को-ऑथरशिप किया। और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि एफ जो है, एफ का जो एरोडोस नंबर है वो सबसे छोटा है, सबसे कम है। अगर एफ का एरोडोस नंबर सबसे कम है और एफ ने ए और सी के साथ अपना को-ऑथरशिप किया, तो कैन आई से कि ए और सी का एफ के साथ को-ऑथरशिप के बाद जो एरोडोस नंबर बनेगा that would be f plus 1 because f has a lowest Erdos number. Let's say the f Erdos number is f, then a और c का जो Erdos number बनेगा after the co-authorship that will be f plus 1. तो इसको हम बाद में यूज करेंगे, अभी पूरी कहानी हम समझ लेते हैं. This reduce the average. Now after this co-authorship of f, a and c, the average this process of f, a and c co-authorship reduce the average Erdos number of the group of 8 mathematician to 3. F, A और C ने जो आपस में co-authorship की, उसकी वजह से पूरे 8 mathematician का जो ग्रुप है, उनका जो टोटल Erdos नंबर है, उनकी एवरेज में 3 का डिक्रीमेंट आया. सो एवरेज में 3 का डिक्रीमेंट आया, 8 में टोटल 3 का डिक्रीमेंट, दैट मीन्स टोटल जो डिक्रीमेंट होना चाहिए वो 24 का होना चाहिए, बिकॉज 8 मैथमेटिशियन की एवरेज गेट्स डिक्रीज. नाउ not by 3, it gets decreased to 3. So abhi total 24 ho gaya, right? So you can say that after the co-authorship of F, A and C, the Erdos number of all the 8 mathematician has been reduced to 3. So 8 mathematician, the average is 3. So the new average now comes out to be 8 into 3, that is 24. The Erdos number of B, D, E, G and H remained unchanged with the writing of this paper. बाकी किसी के भी Erdos number पे कोई इफेक्ट नहीं आया because of the co-authorship of F, A and C. Further, no other co-authorship among any 3 member would have reduced the Erdos number of the group of 8 to as low as 3. कोई भी ऐसा और पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता co-authorship का जिसकी वजह से 8 मेंबर्स का Erdos नंबर 3 तक डिक्रीज हो जाए. ओके, जस्ट इंफॉर्मेशन है, आपने को रीड करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने का, और कोई मेथड नहीं है. आपको पहले पूरी कहानी ही समझनी पड़ेगी, राइट? टेबल तो आप बाद में बनाओगे जब आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. एट द एंड ऑफ द थर्ड डे, 5 मेंबर ऑफ दिस ग्रुप हैड आइडेंटिकल Erdos नंबर while the other 3 had Erdos number distinct from each other. सो थर्ड डे के एंड पे 5 मेंबर्स का Erdos नंबर जो है वो बिल्कुल वो सेम है, और बाकी जो अदर 3 हैं उन सब का Erdos नंबर है वो सबका डिफरेंट है. ओके, ऑन द 5th डे E ने को-ऑथरशिप की F के साथ, जिसकी वजह से विच रिड्यूस द ग्रुप्स एवरेज Erdos नंबर बाय 0.5. नाउ यू सी दैट गाइस, 8 मेंबर्स का एवरेज अगर 0.5 से रिड्यूस हुआ तो कैन आई से कि टोटल डिक्रीमेंट जो आया वो 4 का आएगा, राइट? 8 मेंबर्स हैं, सबसे 0.5. अगर आपने 50-50 पैसा सबसे ले लिया तो टोटल रुपीस कलेक्शन कितना होगा? 4. सो आपका एवरेज 0.5 से रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स टोटल जो डिक्रीमेंट आया वो 4 का आया. वो किसकी ऑथरशिप की वजह से आया? ई और एफ की आपस में को-ऑथरशिप की वजह से टोटल डिक्रीमेंट 4 का आया. कैसे यूज करना है इस पॉइंट को अभी डिस्कस करते हैं. द Erdos नंबर ऑफ द रिमेनिंग 6 वर अनचेंज्ड विद द राइटिंग ऑफ दिस पेपर. ओके, सेम कहानी. नो अदर पेपर वाज रिटन ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस. सो कोई और पेपर नहीं लिखा गया कॉन्फ्रेंस पे. सो 2 ही पेपर लिखे गए. थर्ड डे पे कॉन्फ्रेंस हुई ए, सी और एफ का. थर्ड डे की कॉन्फ्रेंस पे ए, सी और एफ ने अपना एक ऑथरशिप किया, जिसकी वजह से एवरेज रिड्यूस डाउन टू 3. और फिफ्थ डे पे ई और एफ ने को-ऑथरशिप लिखा, जिसकी वजह से ग्रुप का एवरेज डिक्रीज हुआ 0.5 से टोटल डिक्रीमेंट आएगा 4. तो ये 4 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं और कुछ भी नहीं है सेट के अंदर. सो बेसिकली अपने आप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप क्वेश्चंस का एक आइडिया देख सकते हो, राइट? जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. The person having the largest Erdos number at the end of the conference must have had the Erdos number. सबसे बड़ा Erdos number किसका होगा at the end of the conference number? How many participants in the conference did not change their Erdos number during the conference? The Erdos number of C at the end of the conference. So basically, having a look at the questions will give you an idea कि आपको कॉन्फ्रेंस से पहले सबका Erdos number फाइंड आउट करना है, थर्ड डे पे Erdos नंबर फाइंड आउट करना है, और फिफ्थ डे पे Erdos नंबर फाइंड आउट करना है. कितने पर्सन्स का Erdos नंबर चेंज हो रहा है इसके बारे में जानना है, राइट? और कितना किसका Erdos नंबर कितना है,
हाईएस्ट किसका है, दीज आर द पॉइंट्स दैट वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट. सो बेसिकली अपने को एक टेबल बनाना है, राइट? सो वी विल राइट डाउन ऑल द नेम ऑफ द पर्सन, A B C D E F G H, 8 participants. Initially, what is their Erdos number? At the end of day 3, what is their Erdos number? And the end of day 5, what is their Erdos number? So let's assume initially the Erdos numbers are A, B, C, D, E, F, G and H. So थर्ड डे पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों कि F, A और C का कंबाइंड कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसकी वजह से जो एवरेज है वो 3 तक रिड्यूस होगी. दैट मीन्स द न्यू एवरेज इज 3. सो 8 मेंबर्स का एडोस नंबर का एवरेज 3 है, तो टोटल जो होगा एट द एंड ऑफ डे 3 कॉन्फ्रेंस विल बी 24. पहला पॉइंट तो ये आपको नोट डाउन करना है. द एंड ऑफ डे 3 द टोटल ऑफ द एडोस नंबर इज 24. ओके, सबसे छोटा एडोस नंबर F का है. सो जो भी F के साथ को ऑथरशिप करेगा उसका एरोस नंबर F+1 हो जाएगा. वो इलस्ट्रेशन अपने को फर्स्ट पैराग्राफ में दिया था कि एरोस नंबर असाइन कैसे होते हैं. सो F, A और C का एरोस नंबर एट द एंड ऑफ डे 3, एट द एंड ऑफ डे 3 F का तो F रहने वाला है बिकॉज F का एरोस नंबर सबसे छोटा है. सो ही इज अ मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मैथमेटिशियन, और यू कैन से इसने सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर फाइंड आउट किए होंगे, इस ऑथर किया होगा बिकॉज उसका एडोस नंबर सबसे छोटा है. सो F के साथ जो भी को ऑथरशिप करेगा रिसर्च पेपर की, उसका एडोस नंबर F+1 हो जाएगा. और थर्ड डे पे F के साथ जो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं वो है A एंड C. सो A का जो एडोस नंबर होगा एट द एंड ऑफ डे 3 विल बी F+1 एंड C का जो एडोस नंबर होगा एट द एंड ऑफ डे 3 विल आल्सो बी F+1. ओके, नाउ यू सी दैट क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट था कि थर्ड डे कॉन्फ्रेंस पे 5 मेंबर्स का एरोस नंबर सेम है. द 5 मेंबर्स, द एरोस नंबर ऑफ B, D, E, G, H does not change with the writing of this paper. No co-authorship was done. Okay, there's a point at the end of the, look at this point guys, let me just remove everything else. So you see this point guys, at the end of the third day 5 member of this group had identical एरोस नंबर. 5 ऐसे मेंबर्स हैं जिनका एरोस नंबर सेम है. अब वो 5 में से F तो एक मेंबर नहीं हो सकता बिकॉज F का एरोस नंबर सबसे कम है. कोई भी किसी का भी एरोस नंबर F के इक्विवेलेंट नहीं है. सो वो 5 मेंबर में F विल डेफिनेटली बी नॉट ए मेंबर. ओके, और अपने को क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और भी दिया हुआ है. वो इंफॉर्मेशन ये है कि 5th डे पे E ने अपना को-ऑथरशिप किया F से, जिसकी वजह से एरोस में 0.5 का एवरेज में 0.5 का डिक्रीमेंट आया. सो जो टोटल डिक्रीमेंट आएगा वो 4 का डिक्रीमेंट आएगा. सो कैन आई से कि डे 5 पे एरोस नंबर 4 से डिक्रीज हो जाएगा तो टोटल वैल्यू यहाँ पे 20 की आ जाएगी, राइट? सो F का तो एरोस नंबर चेंज नहीं होने वाला, वो तो F ही रहने वाला है. E का एरोस नंबर 5th डे के एंड पे F+1 हो जाएगा. अगर ये F+1 होगा तो यू सी दैट टोटल डिक्रीमेंट 4 का हो रहा है, तो ये डिक्रीमेंट सिर्फ F की ही एरोस नंबर में आएगा क्योंकि और तो कोई को-ऑथरशिप नहीं हो रही है. सो द ओनली पर्सन हु विल बी चेंजिंग इट्स एरोस नंबर विल बी E ओनली बिकॉज E F के साथ को-ऑथरशिप कर रहा है. और E का नया एरोस नंबर F+1 है और 4 के डिक्रीमेंट के बाद F+1 बना, तो कैन आई से कि डिक्रीमेंट से पहले उसका एरोस नंबर F+5 होगा. अब F+1 हुआ तभी तो 4 का डिक्रीमेंट आया, राइट? तभी तो एरोस नंबर में टोटल में 24 से 20 हो गया वैल्यू, राइट? ये 20 क्यों हुआ, 4 से डिक्रीमेंट क्यों हुआ? एवरेज में 0.5 का डिक्रीमेंट है. 8 वैल्यूज में 0.5 का डिक्रीमेंट will decrease the total by 4. 8 into 0.5 is 4. Okay. तो ये पॉइंट्स हमारे हो गए. नाउ लेट्स यूज दिस पॉइंट कि जो 5 मेंबर्स हैं, हु आर दोस 5 मेंबर्स वी डू नॉट नो, राइट? कौन से वो 5 मेंबर्स हैं अपने को उसके बारे में कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता, बट एक आप आइडिया ले सकते हो कि वो 5 मेंबर्स के ग्रुप में E नहीं हो सकता, F भी नहीं हो सकता. सो 8 में से E और F तो नहीं हो सकते क्योंकि इनका तो एरोस नंबर अपने को दिख रहा है डिफरेंट है, और F का किसी और के साथ सेम भी नहीं हो सकता. सो 8 में से 2 चले गए, बाकी बचे 6. अब वो 6 में से अगर आप इन दोनों को भी इंक्लूड नहीं करोगे तो बाकी बचेंगे 4. तो क्वेश्चन में 4 का एरोस नंबर सेम नहीं बोला, 5 का बोला. तो जो 5 का जो ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ 5 मैथमेटिशियन व्हिच हैव द सेम एरोस नंबर, उसमें A और C को तो होना ही पड़ेगा, राइट? ओके, अगर A और C को होना पड़ेगा
तो 2 तो मेंबर ये हो गए, 3 और मेंबर अपने को चाहिए। वो 3 मेंबर्स कौन से हैं उसका अपने को नहीं आइडिया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, राइट। आप अपनी मर्जी से कोई भी मेंबर ले सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं पूछा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का एडोस नंबर क्या होगा। ये पूछा है कि कितने मेंबर्स का एडोस नंबर चेंज हुआ, लार्जेस्ट एंड एट द एंड ऑफ डे किसका है, राइट। सो देयर 5 मेंबर्स वी नो जिनका एडोस नंबर सेम है, तो वो 5 मेंबर्स में ए और सी दोनों ग्रुप मेंबर के पार्ट होंगे, उस ग्रुप का मेंबर होंगे, और ए और सी का f+1 है तो बाकी 3 का भी f+1 होगा। वो 3 कौन से होंगे आप अपनी मर्जी से ले लो। लेट्स से B इज दैट पर्सन, D इज दैट पर्सन, G इज दैट पर्सन। अच्छा H क्यों नहीं है, H भी हो सकता है, हम एक आइडिया ले रहे हैं। 5 मेंबर्स का एडोस नंबर सेम हो गया, 3 का नहीं है, उसमें से एक पर्सन F है, वो तो सबसे स्मॉलेस्ट एडोस नंबर लेके बैठा हुआ है, और E का एडोस नंबर F+5 हमें पता लग गया बिकॉज टोटल यहाँ पे 4 का डिक्रीमेंट है। ओके H का क्या होगा, लेट्स अज्यूम कि H का वैल्यू इज X, राइट। H का कुछ भी हो सकता है, X ले लो या H ले लो, कुछ भी ले लो, कोई और को ऑथरशिप तो हो नहीं रही है। सो H का एडोस नंबर H ही रहने दो, right? Let's take the Erdos number of H as H only, right? Okay, so this is the only information that you can fill. इससे ज्यादा आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया भी नहीं है और कुछ आपको फिल करने का जरूरत भी नहीं है। Now let's have a look at the question कि क्या इतनी इंफॉर्मेशन से सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं? Yeah, let's have a look at it, guys. So the first question is this: the person having the largest Erdos number at the end of the conference must have Erdos number at that time. सो जिसका एडोस नंबर सबसे ज्यादा है वो क्या होगा। गाइस हमारे पास एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि इन सब का टोटल 24 आना चाहिए। इफ यू ऐड देम अप, इसका सबका एडिशन करूंगा तो कितना बनेगा, f कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ऑफ f प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 10। सो यू सी दिस, द टोटल ऑफ दिस, let's do the total of it, guys। 1 2 3 4 5 6 7f plus h, 7f प्लस h प्लस नंबर्स में कितना आ रहा है, 1 2 3 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 1 10 प्लस 10 is coming out to be 24. Okay, so 7f plus h का वैल्यू will be equal to 40. Now you see this, guys, f की वैल्यू अपने को यहाँ पुट करनी है। f 0 तो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज 0 सबसे छोटा एरडोस नंबर है, वो तो पोल एरडोस को खुद को मिला हुआ है, राइट। बाकी सबको तो 1 से शुरू हो सकता है, 0 से नहीं हो सकता। जो भी पोल एरडोस के साथ को ऑथरशिप करेगा रिसर्च पेपर की, उसका एरडोस नंबर 0 + 1 1 हो जाएगा, राइट। बट ये तो खुद पोल एरडोस नहीं है, राइट। सो इसको 0 तो हम नहीं ले सकते। Okay, if I put the value of f as 2, अगर मैं f की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो you see that h का वैल्यू आ जाएगा 0। h का वैल्यू 0 होने का मतलब है that h is Paul Erdos himself. No, that is also not possible, क्योंकि Paul Erdos के बेसिस पे ही सबको आपने एरडोस नंबर दिया। पॉल एरडोस कोई मैथमेटिशियन, वो तो सबसे जो मेन मैथमेटिशियन है जिसकी वजह से आपने एरडोस नंबर का इन्वेंशन किया, राइट, वो उसका रीजन है। सो एरडोस नंबर 0 तो किसी को नहीं मिल सकता है, वो तो पोल एरडोस के बाद खुद है, तो h इज नॉट ए पोल एरडोस हिमसेल्फ। तो f का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, 2 से बड़ा भी नहीं हो सकता, फिर तो h नेगेटिव हो जाएगा। द ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर f टू बी ओवर हियर इज 1। सो अगर f का वैल्यू 1 होगा तो फिर h का वैल्यू विल बी 14 - 7, दैट इज 7। h का वैल्यू 7 आएगा। सो दैट मीन्स जिस पर्सन का h का जो वैल्यू अपने को नहीं पता था उसका वैल्यू h आ गया 7। इसका एडोस नंबर 7 है और वो एंड तक 7 ही रहने वाला है। ओके, बाकी सबका f की टर्म्स में, f की वैल्यू कितनी आई, f का वैल्यू हमने निकाला 1, f का वैल्यू 1 निकाला। सो दैट मीन्स इन सबका वैल्यू 1 डालना है अपने को। सो सबका वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये यहाँ पे आके 2 बनेगा, ये 2 बनेगा, 2 2 2। सो सबसे बड़ा एरडोस नंबर जिस भी पर्सन का, उसने ये नहीं बोला कि किस पर्सन का एरडोस नंबर सबसे ज्यादा है, वो h भी हो सकता है, वो d भी हो सकता है, वो c भी हो सकता है, b भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट डेफिनेटली e नहीं होगा और f नहीं होगा, राइट। सो सबसे बड़ा एरडोस नंबर जो है उसका वैल्यू 7 होगा। किस पर्सन का होगा उसका आंसर आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट बिकॉज मुझे वो फाइंड आउट भी नहीं करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि एरडोस नंबर सबसे बड़ा कौन सा है, and that value is 7. So option 2 will be the answer of this question. ये पूरा कंसेप्ट है इस सेट का। इसी सेट को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में,
जिसमें हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। तो 4 क्वेश्चंस हैं और जो अपने को करने हैं इस सेट में, which I will be discussing in the next part of the video. So this is the table that we will continue with, right? So just make down this table on your notebook and watch the second part of the video to solve the complete set. Thank you so much for watching this video, guys. Please subscribe to the channel and click on the bell icon so that you get notification of all of my lessons. This is my referral code LRDI Samir to get 10% off on Unacademy Plus purchase. Thanks to all of you for watching the video, guys. Thank you.